Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It's a delight for us to know that you have tuned into this broadcast. हम ये जानकर आनंदित हैं कि आप इस प्रसारण में सम्मिलित हैं। And if you are joining our broadcast for the first time, और यदि आप हमारे प्रसारण में पहली बार शामिल हुए हैं, we are in the midst of a series of messages from the first epistle of Peter. तो हम पत्रस की पहली पत्री पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। Today we are going to look at what Peter tells us about God's design for marriage. आज हम देखेंगे कि पत्रस विवाह पर परमेश्वर की योजना के बारे में हमसे क्या कहता है। Dealing with marital relationships is one of the most explosive subjects. विवाह संबंधों पर बात करना एक विस्फोटक विषय है। What are the characteristics of an ideal marriage? एक आदर्श विवाह संबंध की विशिष्टताएं क्या हैं? In the world today, there are many conflicting voices regarding the ideal marriage. आज संसार में एक आदर्श विवाह संबंध के बारे में बहुत सारे मतभेदपूर्ण विचार हैं। That is one reason why so many marriages are in trouble. बहुत सारे विवाह संबंधों में समस्या का ये एक कारण है। There are so many opposing views, फिर बहुत सारे विपरीत विचार हैं। so many conflicting arguments, वैचारिक भिन्नता के बहुत सारे वाद विवाद, and all have produced broken marriages, broken homes, broken lives, and broken people. और इन सब से पैदा हुए हैं टूटे हुए विवाह, टूटे हुए परिवार, टूट चुके जीवन और टूट चुके लोग। There are many advisors, counselors, and so-called experts. यहाँ बहुत सारे सलाहकार, परामर्शदाता और जिन्हें विशेषज्ञ कहा जाता है वो हैं। These experts often argue from experience as to what constitute a happy marriage. ये विशेषज्ञ अक्सर अनुभव में से तर्क देते हैं कि एक सुखी विवाह संबंध कैसे बनता है, And that's very dangerous. और ये बहुत खतरनाक है। They are causing more harm than good. वो ठीक करने से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, Because God our Maker gives us what He designed for an ideal marriage. क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता एक आदर्श विवाह संबंध के लिए हमें वो रूपरेखा देता है जो उसने बनाई है। God has a plan for a contented marriage. एक संतुष्ट विवाह संबंध के लिए परमेश्वर की एक योजना है। Sometimes I visualize the problem of marriage today as a group of day laborers who want to build a skyscraper. आज विवाह संबंध की समस्या को मैं कई बार दिन में काम करने वाले उन मजदूरों के एक समूह के रूप में देखता हूं जो एक गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं। And they try to build this skyscraper without the architectural blueprint. और वो इस इमारत को भवन निर्माण रूपरेखा वाले नक्शे के बिना बनाना चाहते हैं। Can you imagine what kind of a building would that be? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये इमारत कैसी होगी? It would be constantly falling apart. ये लगातार गिरती हुई होगी। In the world today, people enter marriage without a good blueprint. आज संसार में लोग बिना किसी रूपरेखा के विवाह संबंध में प्रवेश कर रहे हैं। Have you noticed how many people who have failed marriages become experts and give free advice on marriage? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कितने लोग हैं जिनके अपने विवाहित संबंध असफल होने के बाद वो विशेषज्ञ बन जाते हैं और विवाह पर मुफ्त परामर्श देते हैं? Would you like a medical student who failed his medical boards 6 times and then become a medical expert? क्या आप एक ऐसे चिकित्सा विद्यार्थी के पास जाना पसंद करेंगे जो अपनी चिकित्सा परीक्षा में 6 बार फेल हुआ है और फिर चिकित्सा विशेषज्ञ बन गया हो? This kind of thing does not happen. ऐसा नहीं हो सकता। But somehow these people have become so-called experts on marriage. परंतु किसी न किसी तरह से ये लोग विवाह के बारे में विशेषज्ञ बन जाते हैं। I just read about an expert who was counseling a couple in his office. मैंने एक ऐसे ही विशेषज्ञ के बारे में पढ़ा जो अपने कार्यालय में एक दंपति को परामर्श दे रहा था। After listening to them for a while, कुछ देर तक उनकी बातें सुनने के बाद he attempted to offer some hope to what seems to be an irreconcilable difference. उसने एक बेमेल से लगते हुए मतभेद पर एक आशा लाने का प्रयत्न किया। The problem that you seem to have here is that you are both overreacting to minor problems. मुझे लगता है कि आपकी समस्या ये है कि आप दोनों छोटी छोटी समस्याओं पर हद से ज्यादा ही प्रतिक्रिया करते हैं। I know how you feel about this. मुझे पता है कि इस बारे में आप कैसा महसूस करते होंगे। I had the same problem with one of my wives. मेरी पत्नियों में से एक के साथ मेरी भी यही समस्या थी। Let us turn to the blueprint of the designer's guide. आइए योजना बनाने वाले की पुस्तक में दी गई रूपरेखा पर चलते हैं। Let us see what God said in His Word. आइए देखें परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है। If you have your Bible, please turn to 1 Peter chapter 3 verses 1 to 8. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया इसे पहला पत्रस 3 अध्याय के 1 से 8 पदों पर खोलिए And let us read it together. और आइए इसे मिलकर पढ़ें।
हे पत्नियों, तुम भी अपने पतियों के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। My listening friends, I have emphasized this many times in the past messages. मेरे श्रोता मित्रों, मैंने पिछले कई संदेशों में इस पर बहुत जोर दिया है, But it is very important. परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। Namely, that you must understand the scriptural passage in its context. अर्थात कि आपको वचन के भाग को वहां उसकी असल स्थिति को ध्यान में रखते हुए समझना आवश्यक है। Because someone looked at these 8 verses of 1 Peter 3 and asked, क्योंकि एक बार किसी ने पहला पत्रस 3 अध्याय के इन 8 पदों को देखकर पूछा, why are there 6 verses in this passage directed to wives and only 1 verse to husbands? इस भाग में क्यों 6 पद पत्नियों के बारे में है और केवल 1 पद पतियों के बारे में है? The truth is, there is a historical reason for that. सच्चाई ये है कि इसका एक ऐतिहासिक कारण है। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। In Roman society, where Peter was writing this letter by the inspiration of the Holy Spirit, रोमन समाज में जहां पत्रस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस पत्री को लिख रहा था, it was the accepted rule that a wife should always have the same religion as her husband. ये स्वीकृत नियम था कि एक पत्नी का वही धर्म होना चाहिए जो उसके पति का है। So when the Christian faith appeared in the Roman society, तो जब रोमन समाज में मसीही विश्वास प्रकट हुआ, it was a common practice when a pagan husband becomes a Christian, तो ये एक आम बात थी कि जब एक अन्य जाति पति मसीही बनता था, that his wife and family automatically followed and they became Christians. तो उसकी पत्नी और परिवार स्वाभाविक ही उसके पीछे चलने लगते और मसीही बन जाते थे। That was clear from the Cornelius conversion in the book of Acts chapter 10. प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कुरनेलियस के परिवर्तन से ये बात स्पष्ट होती है। That was clear in the conversion of the Philippian jailer. फिलिप्पी दरोगे के परिवर्तन से ये बात स्पष्ट होती है। That was the culture of the Roman society. ये रोमन समाज की संस्कृति थी। Whatever religion the husband embraced, the wife and the children followed. जो भी धर्म पति अपनाता था, पत्नी और बच्चे भी उसी धर्म में चलते थे। But if the wife became a Christian and the husband remained a pagan, परंतु यदि पत्नी मसीही बन जाती लेकिन पति अन्य जाति ही रहता, that created a huge problem. तो इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी। I cannot describe to you about the social dislocation that this has created in the pagan society. मैं उस सामाजिक गड़बड़ी का वर्णन नहीं कर सकता जो इस वजह से अन्य जाति समाज में पैदा हो गई। The Roman man saw his wife's change of religion as a challenge to his manhood. रोमी पुरुष यदि उसकी पत्नी धर्म बदल लेती तो वो इसे अपने पुरुषत्व के लिए चुनौती मानता था। He saw that as a challenge to his authority as the head of the household. वो इसे घर का मुखिया होने के अपने अधिकार को चुनौती के रूप में देखता था। Generally speaking, a Roman wife could add 1 or 2 or 3 or 4 new gods to the list of gods that the family worshiped. साधारण रूप से कहें तो एक रोमी पत्नी उन ईश्वरों की सूची में जिसकी भक्ति उसका परिवार करता था, 1 या 2 या 3 या 4 नए ईश्वर और शामिल कर सकती थी। And that was just fine with the pagan Roman husband. और इससे अन्य जाति पति को कोई एतराज नहीं था। He had no problem with that whatsoever. इससे उसे बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। Why? क्यों?
Because they believed that the more gods that they had, the better off they were. क्योंकि उनका विश्वास था कि जितने अधिक ईश्वर उनके पास होंगे उतना ही वो परिवार सुखी होगा। But what the unbelieving Roman husband could not understand or could not accept was the exclusive nature of Christianity. परंतु एक गैर विश्वासी रोमी पति जो बात नहीं समझ पा रहा था या स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वो था मसीहियत का असाधारण गुण। He could say to his wife, "What do you mean you are abandoning all of the gods and sticking just to worshipping one God?" वो अपनी पत्नी से कहता, क्या मतलब है तुम्हारा सारे ईश्वरों को त्याग कर एक परमेश्वर की भक्ति में लग जाना? What do you mean you are doing away with all the gods? इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सब ईश्वरों को हटा रही हो? We need more gods, not less. हमें कम नहीं बल्कि और अधिक ईश्वरों की आवश्यकता है। The unbelieving Roman husband, like the unbelieving husband today, आज के गैर विश्वासी पति की तरह ही रोमी गैर विश्वासी पति भी, he does not understand when his wife comes home and says, "Jesus said, I am the way, the truth and the life." वो ये नहीं समझ रहा कि कब उसकी पत्नी घर आएगी और कहेगी, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। That no one comes to the Father except through me. कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। Therefore, because of the very specific problem that had arisen among believing wives who had unbelieving husbands, इसलिए इस बहुत ही मुख्य समस्या के पैदा होने के कारण जो कि उन विश्वासी पत्नियों के बारे में थी जिनके पति गैर विश्वासी थे, Peter spends 6 verses trying to help them deal with this difficulty. पतरस इस समस्या से निपटने में उनकी सहायता के लिए 6 पद देता है। He dedicates more verses to minister to them than he does for the believing husband. विश्वासी पति के लिए दिए पदों से अधिक पद वो उनकी सहायता के लिए समर्पित करता है। A believing husband who automatically had a believing wife had to do only one thing. एक विश्वासी पति जिसकी पत्नी स्वाभाविक ही विश्वासी बन जाती थी, उसे केवल एक ही काम करना होता था। Look at 1 Peter 3:7. पहला पत्रस 3 अध्याय के 7 पद को देखिए। He is to be thoughtful, उसे विचारशील होना चाहिए, caring, देखभाल करने वाला, giving, देने वाला, supportive, मददगार, nurturing, पालन पोषण करने वाला, sensitive, अनुभूतिशील, understanding, समझने वाला and considerate. और ध्यान रखने वाला। Oh, that's not easy. ओ, ये आसान नहीं है। But Peter says a Christian husband must have all of these qualities. परंतु पत्रस कहता है कि एक मसीही पति में ये सब गुण होने चाहिए। What Peter actually does here is give more responsibility to the Christian husband in one verse than he gives to the wife in 6. पत्रस यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो एक मसीही पति को एक ही पद में उससे अधिक जिम्मेवारियां देता है जितनी वो पत्नियों को 6 पदों में देता है। So now you understand why there are more verses for Christian wives with unbelieving husbands than there are for husbands. तो अब आप समझते हैं कि यहाँ क्यों पतियों के बजाय उन मसीही पत्नियों के लिए अधिक पद हैं जिनके पति गैर विश्वासी हैं। What does the Word of God say to believing spouses who have unbelieving spouses in this passage of 1 Peter 3:1-8? यहाँ पहला पत्रस 3 अध्याय के 1 से 8 पदों के इस भाग में परमेश्वर का वचन उन विश्वासी पति पत्नियों से क्या कहता है जिनके साथी गैर विश्वासी हैं। In verses 1 and 2 he said, 1 और 2 पद में वो कहता है, You do not have to use words in your witnessing. तुम्हें गवाही देने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। In verses 3-5 he said, 3 से 5 पद में वो कहता है, Your inner beauty of character is your greatest asset. तुम्हारे आचरण की अंदरूनी सुंदरता तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। In verse 6 he said, 6 पद में वो कहता है, Your submission to God will liberate you from all fears. परमेश्वर के प्रति तुम्हारी अधीनता तुम्हारे सारे भय से तुम्हें स्वतंत्र करेगी। Finally, for believing couples, he says in verse 7, अंत में विश्वासी दंपतियों के लिए वो 7 पद में कहता है, Learn to live in harmony together, for this is how your prayers will be answered. एक मनता से मिलकर जीना सीखो क्योंकि इसी से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। Let us look at all of these very quickly. आइए जल्दी से इन सबको देखें। First, पहला, you don't have to use words in your witnessing. आपको गवाही देने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। Look at 1 Peter 3:1. पहला पत्रस 3 अध्याय के 1 पद को देखिए। Likewise, wives submit to your husbands, so that if any of them is not a believer,
would be won over without a word being said. इसी प्रकार से पत्नियों, तुम भी अपने पतियों के अधीन रहो, ताकि यदि उनमें कोई विश्वासी नहीं है तो तुम्हारे बिना कोई शब्द बोले तुम्हारे चाल चलन से वो जीत लिया जाए। Do you want to know what Peter is saying here? क्या आप जानना चाहते हैं कि पतरस यहाँ क्या कह रहा है? He knows that a new believer is always full of zeal and vim and vigor. वो जानता है कि एक नया विश्वासी हमेशा शक्ति, उत्साह और जोश से भरा होता है। A new believer is anxious for an unbelieving spouse to experience what she's experiencing. एक नया विश्वासी इस बात की तीव्र इच्छा करता है कि उसका गैर विश्वासी पति या पत्नी भी वो अनुभव करे जो वो कर रहा या कर रही है। But because they are new believers, परंतु क्योंकि वो नए विश्वासी होते हैं, they do not understand that conversion is God's job. वो ये नहीं समझते कि परिवर्तन परमेश्वर का कार्य है। They do not understand that it will be done on God's timing. वो ये नहीं समझते कि ये परमेश्वर के उचित समय में हो जाएगा। And they are tempted to be so persistent in their enthusiasm और उनका जोश निरंतर उनकी परीक्षा करता रहता है that they are tempted to nag their husbands. और वो अपने पतियों को तंग करने की परीक्षा में पड़ी रहती हैं। So Peter is saying, don't nag him. तो पतरस कह रहा है कि उन्हें तंग ना करो, That will turn him off. इससे वो विमुख हो जाएगा, That will be counterproductive. इससे विपरीत परिणाम निकलेंगे। My listening friends, listen carefully to what Peter does not say. मेरे श्रोता मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनिए जो पतरस नहीं कहता है। He does not say ignore him. वो ये नहीं कहता कि उसे अनदेखा करें। He does not say be cold and disapproving of him. वो ये नहीं कहता कि उससे उदासीन रहे और उसका खंडन करें। No, he does not do that. नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा। He does not say never answer a question about the faith when he asks you. वो ये नहीं कहता कि जब वो आपसे विश्वास के विषय में प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर कभी न दें। No. नहीं, But rather Peter tells wives to demonstrate the character of Christ. परंतु इसके बजाय पतरस पत्नियों से कहता है कि वो मसीह का चाल चलन दिखाएं। And that is why this passage comes immediately after the passage that we looked at in the last message. और इसीलिए ये भाग उस भाग के तुरंत बाद आता है जिस पर हमने पिछले संदेश में गौर किया था, Namely the modeling of the example of Christ. अर्थात मसीह के उदाहरण को अपना आदर्श बनाना। Do you remember what I said to you in the last message? क्या आपको याद है जो मैंने आपको अपने पिछले संदेश में बताया था? No one can ever model the example of Christ unless they have a relationship with Jesus Christ. कोई भी तब तक मसीह के उदाहरण को कभी अपना आदर्श नहीं बना सकता जब तक वो मसीह के साथ जुड़ते नहीं हैं। Here he is saying, wives, now that you have a relationship with the Lord, यहां वो कह रहा है कि पत्नियों, अब जबकि तुम्हारा संबंध मसीह के साथ जुड़ गया है, then model his example in your life. तो अब उसके उदाहरण को अपने जीवन में अपना आदर्श बनाओ। He is saying, develop your blessed characteristic. वो कह रहा है कि खुद में अपने आशीषकर्ता की विशेषताएं विकसित करो। Peter does not speak to single people in this passage. इस भाग में पतरस किसी अकेले व्यक्ति से बात नहीं कर रहा। For those of you who are believers and are single, क्योंकि आप में से जो अविवाहित हैं और विश्वासी हैं, Paul tells you not to marry a non-believer. पौलुस हमें किसी गैर विश्वासी से विवाह ना करने के लिए कहता है। Peter here is speaking to wives who became believers after they were married. पतरस यहाँ उन पत्नियों से बात कर रहा है जो विवाह के बाद विश्वास में आई। And single people do not be tempted to say, I will marry him or her and then convert him or her. और अविवाहित विश्वासी इस विचार की परीक्षा में कभी ना पड़े कि मैं उसके साथ शादी करके उसके बाद उसे प्रभु में ले आऊंगा या ले आऊंगी। God might overrule, but you are tempting God when you live in disobedience to his clear injunction. परमेश्वर शायद इस बात को अस्वीकार कर दे, परंतु जब आप परमेश्वर के इस स्पष्ट आदेश की अनाज्ञाकारिता में जीते हैं तो आप परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। An old Puritan many years ago wrote the following. और बहुत साल पहले एक बुजुर्ग कट्टरपंथी ने लिखा, If you marry a child of the devil, you can expect to have trouble with your father-in-law. यदि तुम शैतान की औलाद से शादी करते हो तो तुम अपने ससुर के साथ समस्या में पड़ने की आशा कर सकते हो। You don't have to use words to witness to your spouse. अपने पति या पत्नी को गवाही देने के लिए आपको शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। Next time we will look at your inner beauty of character and how it is your greatest asset. अगली बार हम अपने आचरण की अंदरूनी सुंदरता के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आपका सबसे बड़ा धन है।
Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।